Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. कल बताया था ना ये ए अल्फा बी अल्फा सी अल्फा आर नाउ स्टैंडर्ड नोटेशंस है ना. व्हाट इज ए अल्फा? सीक्वेंसेस विच आर इन द डोमेन एंड कन्वर्जिंग टू अल्फा. डोमेन यहां पर डीओडी क्या है? पूरा आर है ना. व्हाट वी नीड? नेबरहुड ऑफ अल्फा. सो ए अल्फा इज सेट ऑफ सीक्वेंसेस विच कन्वर्ज टू अल्फा. बी अल्फा इज सेट ऑफ sequences FAN, the functional value sequence. We can say if F is from S to R, alpha belong to S prime, that means limit point or ACP, and then A alpha is set of those sequences in which AN belong to S in the domain and S minus alpha. In fact, ये AN कभी भी alpha equal नहीं होता. And limit AN equal to alpha. Set of those sequences in the domain which converge to alpha, which is limit point of S. And then B alpha is set of functional value sequences corresponding to this. And C alpha is the collection of possible limits if these sequences are convergent. इसमें जो जो converge कर रही होगी उसकी limit, but किसमें? फंक्शन वैल्यू. ठीक है. प्रोवाइडेड इफ एग्जिस्ट. हम इसमें से एक सीक्वेंस उठाएंगे, देखें कन्वर्ज कर रही होगी. इफ यस देन दैट लिमिट इज मेंबर ऑफ सी अल्फा. इफ नॉट विल चेंज द सीक्वेंस, ट्राई अनदर सीक्वेंस, सो ऑन. सो देयर आर वैरायटी ऑफ सीक्वेंसेस इन बी अल्फा. ऑल सीक्वेंस आर वेरीफाइड, जो भी सीक्वेंसेस हैं. ठीक है. एंड देन देयर लिमिट्स आर कलेक्टेड इन सी अल्फा. In the previous lecture we discussed this kind of convergence of sequence. हम लोग सीक्वेंस वाला टॉपिक पढ़ के आए ठीक से. So there is no problem analyzing this. यहां पर आप कोई भी सीक्वेंस लीजिए AN. नाउ लेट AN टेंड्स टू अल्फा. डोमेन तो पूरा है ही. So this is what A alpha is sequence AN such that this. True? What is B alpha first of all? F of AN. But f of AN equal to fractional part AN. This is equal to AN minus greatest integer AN. Isn't it? So this B alpha is collection of what kind of sequences? Bn. And what is Bn? Bn equal to AN minus greatest integer AN. This and limit AN equal to alpha. अब कोई दिक्कत नहीं है. A alpha is collection of those sequences which converge to alpha. B alpha is defined through a function. What kind of function we have? According to that function we define this. So B alpha is a set of sequences which are functional value sequences. अब मुझे पता है F क्या है, इस तरह से दिया हुआ है. मैं यहां AN रखूंगा तो AN यहां रहेगा, यहां से ये हम कह सकते हैं. ठीक है. Now what is alpha? 1. If limit AN equal to alpha, which is 1, say 1, which is 1. Now there are two choices. AN belongs to 1 plus 1 to 1 plus delta, or AN belongs to 1 minus delta to 1. This implies greatest integer AN will be 1 and this implies greatest integer AN will be 0. True? अगर हमें ये पता है ना कि अगर AN मेरा 1 और 1 plus 1 से बड़ा होगा
क्योंकि 1 प्लस डेल्टा कभी तो ये नीचे आएगा ना, विल स्टार्ट विद दैट व्हेन इट इज नॉट मोर देन 2। भाई 1 पे कन्वर्ट करना है तो 1 के नेबरहुड से कन्वर्ट करेगा, तो ये वैल्यू हमेशा 1 रहेगी और ये मेरी 0। अब इस और an लाइज 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा फॉर सम n, for some n it is on the left side, for some n it is on the right side, and then converge to alpha ना, ऐसे फ्लक्चुएट करके भी। so to converge to a point we have 3 possibilities। सीक्वेंस वाले टॉपिक पढ़ा था आपने, इस पॉइंट पे जाने के 3 तरीके हो सकते हैं, हमेशा यहां से जाए या यहां से और यहां पर इन दिस वे, है ना, जैसे 1 माइनस माइनस 1 टू द पावर n अपॉन n, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, 1 माइनस 1 बाय n और 1 प्लस 1 बाय n, ये तीनों तरीके हैं। इस केस में ये जो वैल्यू रहेगी ये 0 और 1 होती रहेगी, इस केस में ये वैल्यू हमेशा 0 रहेगी 0, और इस केस में हमेशा 1 राइट में रहेगा। तो अब यहां से देखिए इस यहां पर क्या हो रहा है, नाउ लिमिट bn इक्वल टू लिमिट an माइनस लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर an, ये वैल्यू आएगी लिमिट an दैट इज 1 माइनस 1 माइनस 0 एंड डज नॉट एग्जिस्ट। ये अगर हमारा जब an कहां रहेगा 1 प्लस 1 टू 1 प्लस डेल्टा में, ये an बिलोंग करेगा 1 माइनस डेल्टा टू 1, और ये जब ऑसिलेट करेगा ट्रू, ये वैल्यू क्या आएगी इसकी वैल्यू 1 की 0 और इसकी डज नॉट एग्जिस्ट इन दैट सेंस, ग्रेटेस्ट विल नॉट एग्जिस्ट, प्लस 1 इट हैज 2 सबसिक्वेंस, सो लिमिट bn इज 1 और 0 और डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाट इज सी अल्फा, 2 सीक्वेंस तो कम से कम मिल ही रही है ना, एक 1 राइट से जा रही है और एक लेफ्ट से जा रही है, अगर एग्जिस्ट करेगी तो 1 या 0 या तो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस केस में सी अल्फा क्या आ जाएगा मेरा, सी अल्फा क्या आ जाएगा, सिंगलटन, दिस इज 1 कॉमा 0 फॉर विच फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट x, है ना। ये हम जानते हैं हाउ टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ए अल्फा बी अल्फा सी अल्फा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये सीक्वेंशियल एनालिसिस ऑफ फंक्शन, हम जब ए अल्फा बी अल्फा सी अल्फा की बात करते हैं, हमको बताया जाता है कि आपको एक फंक्शन दिया गया है, एक पॉइंट अल्फा दिया गया है, और अब एक्स को हम अल्फा की तरफ लेके जा रहे हैं और डिस्कस करो एफ कैसे बिहेव करेगा। ये सिंपल क्वेश्चन होता है, यू आर गिवन अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, अ पॉइंट अल्फा विच इज लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन और एसीपी ऑफ डोमेन, एंड देन यू आर आस्क्ड टू डिस्कस बिहेवियर ऑफ एफ व्हेन एक्स अप्रोचेस टू अल्फा। ये कर रहा होता है। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले हमने क्या किया, एक एनालिसिस किया, सीक्वेंशियल एनालिसिस ऑफ फंक्शन। हमने अल्फा पे जाने वाली सीक्वेंस इकट्ठी कर ली, पता है एक्स अल्फा तक जा रहा है ना, तो जाए कैसे, इंस्टेड ऑफ दैट एक्स टेंड्स टू अल्फा वी हैव कलेक्टेड ऑल पॉसिबल सीक्वेंसेस व्हिच कन्वर्ज टू अल्फा। और ये सीक्वेंसेस कहां से उठाई, डोमेन से। डोमेन में क्या है एक्स, एक्स टेंड्स टू अल्फा, मान सकते हैं कि एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा थ्रू सीक्वेंसेस। व्हाट इज ए अल्फा नाउ, द सेट ऑफ ऑल पाथ, सीक्वेंशियल पाथ बाय विच एक्स टेंड्स टू अल्फा। अगर मैं देखूं तो ए अल्फा मुझे वही सेट तो दे रहा है, इट इज सेट ऑफ ऑल दो सीक्वेंशियल पाथ थ्रू विच एक्स टेंड्स टू अल्फा, एंड देन बी अल्फा इज सेट ऑफ दोज पाथ विच एफ फॉलोज when x tends to alpha through sequence in A alpha, B alpha is set of those path which f follows as per x tends to alpha. और x कहां से आ रहा है, सीक्वेंस के थ्रू, an, bn, cn, dn, they are tending towards alpha, so they are path in domain. What is B alpha? Set of path followed by f, the function, है ना। इन पाथ के अकॉर्डिंग, इन पाथ, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल का है, तो f कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, उन सारे पाथ को इकट्ठा कर लिया कहां, बी अल्फा में। तो ए अल्फा एंड बी अल्फा बोथ आर सेट ऑफ पाथ। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पाथ है, उन सब लोग को कहां जाना है, एक ही जगह अल्फा पे। दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल्स का, ठीक है पक्का। क्या हुआ, कुछ नहीं और कुछ लोग ऐसा लगता है सुबह सुबह किसी को पीट पाट के आते हैं, झगड़ा करके आते हैं।
सो आपके पास जो एनालिसिस का तरीका है ना कि x टेंस टू अल्फा, fx टेंस टू अल्फा, पूरे मैं शायद उस दिन जिक्र भी कर रहा था थॉमसन की उस बुक का, जिसमें टाइटल है बुक का कैलकुलस मेड इजी। कैलकुलस मेड इजी टाइटल एंड द ऑथर इज थॉमसन, सम फॉरेन पब्लिकेशन, बिलीस्टन में है। तो मैंने जिक्र किया था शायद उस बुक का। उसने सीक्वेंस कंटिन्यू लिमिट स्टार्ट करने से पहले यही जिक्र किया, उसने लिमिट के चलते सीक्वेंस पढ़ाने की कोशिश की। स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि बिफोर वी गो फॉर स्टडी ऑफ लिमिट्स वी शुड अंडरस्टैंड द वर्ड टेंडेंसी, समथिंग टेंड्स टुवर्ड समथिंग, एंड देन देयर आर टू अप्रोचेस टू टेंड टुवर्ड समथिंग। जैसे ये है ना, ये उसका नहीं है, ये मेरा है, ये फाउंटेन हेड है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग बैठ सकते हैं, यहां पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब यहां से यहां जाना है, वैलेंटाइन वीक बीत गया, उसके बाद भी ये फाउंटेन हेड है, ये प्लेटफॉर्म है, यहां जाके बैठना है, बट यहां पानी भरा हुआ है। तो फिर कुछ कुछ स्टेप्स बना दिए, ऐसे लोटस स्टेप्स बन जाते हैं ना, इस पे जंप करते जाइए या बैठ जाइए, गुस्सा है झगड़ा कीजिए, धक्का दीजिए यहीं पर, ठीक है। तो देख लीजिए तैरना आता हो बस। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। ठीक है, these can be two paths to reach here, है ना। ये हमारे डिस्क्रीट है, ये हमारे, इनकी डिस्टेंस अगर आप थोड़ी सी डिस्टेंस दूर रखी जाए ना, तो यू कैन रेस्ट्रिक्ट सम काइंड ऑफ पीपल कि कौन जो इसको इसको बना कर दीजिए भाई, यहां से बच्चे जाएंगे, ठीक है। तो यहां से थोड़े से बड़े, बट उनको जंप करके जाना होगा भाई, आसान थोड़ी है प्यार मोहब्बत का खेल, थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो यहां से जंप करके आपको तो ये डिस्क्रीट कहलाता है, ये कंटिन्यूअस है फॉर अप्रोचिंग टुवर्ड समवेयर, जंप एंड ये कंटिन्यूअस। तो ये हमारा कह सकते हैं सीक्वेंशियल अप्रोच है ये, और ये कंटिन्यूअस अप्रोच है। ये जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना हम लोग, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h, ऐसे ही लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h, अगर ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं, इक्वल है, तो कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। डिजिट 3 है, f ऑफ x इक्वल टू लिख लो साइन 1/x और निकालो f है ना, 0 पे चेक कर रहे हैं, 0 प्लस h, ये था अच्छा भला, इसको लिख लिया 0 प्लस h। अब क्या हो गया, साइन 1/0 प्लस h, और लिमिट h टेंड टू 0 साइन 1/h, यहां पर भी लिमिट, यहां भी लिमिट, एंड हियर इट डज नॉट। यहां कौन सी बुराई थी, यहां आके कहते हैं लिमिट डज दिस ऑसिलेट्स, x को h कर दिया, ये तो यहां भी कह सकते थे भाई, बट यहां आके कहते हैं फिर 0 माइनस h ऐसे किया, और माइनस बाहर साइन आ गया अपॉन साइन 1/h, एंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज दिस ऑसिलेट, ये तो ये भी ऑसिलेट कर रहा था, इजंट इट। तो ये अप्रोच ही समझ में नहीं आ रही कि h का रोल क्या था। या दूसरा एग्जांपल उठाया जाए यहां पर, पॉसिबल ही नहीं इस मेथड को डिस्कस करना। दूसरा, अगर हम ये फंक्शन उठा लें f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस 1 x बिलोंग्स टू q, x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट, या x और माइनस x सपोज। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी पॉइंट पे चेक करना चाहूं a प्लस h, यहां तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता कि ये है क्या वैल्यू, बिकॉज h इज डायनेमिक, h इज मूविंग। अब ये a प्लस h रैशनल है कि मैं लिखूं का यहां पर x a प्लस h लिखूं या माइनस ऑफ a प्लस h लिखूं, तो ये तो फंक्शन ही नोन नहीं है अभी तक। सो इन सच काइंड ऑफ फंक्शंस वेरी डिफिकल्ट टू गो विथ कंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूअस पाथ, हम ऐसे जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, यहां पर सीक्वेंस ही हेल्प करेंगे हमको। सो सेट ए अल्फा इज सम सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी, ए अल्फा जो आपके पास है वो एक फैसिलिटी है। आपको क्या बताता है ए अल्फा, आप अल्फा चूज करो, अल्फा चूज करो, ठीक है,
और उस अल्फा फंक्शन दिया होगा, अल्फा चूज करो एंड देन कलेक्ट ऑल पॉसिबल पाथ विच टेक्स यू टू अल्फा. दोज आर सीक्वेंशियल पाथ. या तो y इक्वल टू mx, आपने ये भी खूब किया हुआ है, एफ एक्स वाई याद आ गया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब y इक्वल टू एम एक्स चूज करते थे, एक पाथ चूज कर लिया और फिर कहते ये m पे डिपेंड कर रहा, हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, अगर आप ये y इक्वल टू एम एक्स इज फॉर डिफरेंट m, दिस इज सेट ऑफ पाथ. अगर मैं ये चूज कर लूं ऐसे और m बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये सारे सेट ऑफ लाइंस हो गया. दे ऑल आर पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो इस रास्ते पे चल के आप ओरिजिन से पास हो सकते हो, बट दिस नॉट सेट ऑफ ऑल पाथ. ये भी तो ओरिजिन से जा रहा है. x to power n element of natural number, it is also tending to, it is also passing through origin. ये भी तो जा रहा है ओरिजिन से, ये भी तो ओरिजिन से जा रहा है, ये भी तो ओरिजिन से जा रहा है, और 1 माइनस कॉस एक्स ये भी तो ओरिजिन से पास हो रहा है. ऐसे दुनिया भर के पाथ है जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं. सो द सेट ऑफ पाथ विच आर गोइंग थ्रू ओरिजिन इज इनफाइनाइट अनकाउंटेबल सेट. तो इसलिए हम लोग हाइपोथेटिकली कह देते हैं कि यार वहां भी ये बड़ा काम आने वाला है. हाँ, वहां पाथ के अलावा हम क्या करेंगे, एक ए एन बी एन सीक्वेंस भी ले लेंगे जहां ए एन कन्वर्स टू 0, बी एन कन्वर्स टू 0. इट इज पेयर ऑफ सीक्वेंस विच इज कन्वर्स टू व्हाट, 0. तो हम इसके थ्रू भी जा सकते हैं, एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ बी एन कर सकते हैं. तो यहां जो हमारा सेट आया था ए अल्फा बी अल्फा, इस बार एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने ये पूछा हुआ था 0 F0 और ये अपर लिमिट लोअर लिमिट. आज तक नहीं पूछा था उन्होंने, इस बार पूछा है उन्होंने अपर लिमिट. और ये जो आपका सेट ऑफ सीक्वेंसेस है ना, उसमें वहीं से निकाल लीजिए सारी सीक्वेंस. अगर राइट से ले रहे हैं ना, राइट से उसका सुप्रीमम उसका इन्फीमम, सारी सीक्वेंस राइट से लेंगे. तो ये 0 प्लस किसी में 0 प्लस एफ ये अपर बन जाएगा और राइट से ही, और सबका इन्फीमम तो लोअर बन जाएगा. ऐसे लेफ्ट से करेंगे, सबका अपर ले लेंगे तो सुप्रीमम जो लेंगे वो अपर लिमिट, इन्फीमम जो लेंगे वो लोअर लिमिट. जो अभी सीक्वेंस वाला मामला है, जैसे अभी बनाया ना हम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में, राइट से कहां जा रहे हैं, या तो 1 पे या 0 पे. तो अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0 फ्रॉम राइट, फ्रॉम लेफ्ट अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, दोनों से एक तरफ आने वाले हैं वो. अब देखिए यहां पर फिर हम हाँ बिल्कुल, बीएन की लिमिट का क्या मतलब है, बीएन में जो सीक्वेंसेस हैं, एक को बताओ. अच्छा आराम से बिल्कुल, है ना. एक सेट लिया मैंने एक्स, शायद अब क्लियर हो जाएगा आपको. ए एन बी एन सी एन और डी एन, ये एक सेट है. हाउ मेनी सीक्वेंसेस, 4 सीक्वेंसेस. नाउ एक सेट बनाया y, इट इज लिमिट एक्स एन इफ एग्जिस्ट, ठीक है, वेयर सीक्वेंस एक्स एन बिलोंग्स टू एक्स. ये एक्स एन में 4 में से कोई होगी. बताओ y के बारे में क्या कह सकते हो, कुछ कमेंट करो y पे. अगर ये सबसे पहले हम इसको उठाएंगे, टेस्ट करेंगे, कन्वर्ज करती हुई तो x में एक मेंबर मिल जाएगा, नहीं हुई तो हम फिर इसको ट्राई करेंगे. इफ एग्जिस्ट है ना, अगर इसकी लिमिट मिली तो वो x में आ जाएगी वो लिमिट, और नहीं तो हम इसको टेस्ट करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे. सो कैन आई से दिस इंप्लाइज y हैज कार्डिनलिटी लेस और इक्वल टू 4. हो सकता है चारों की लिमिट सेम हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर 4 से तो नहीं आएगी ना. y मे बी एम्प्टी, y may be empty. अब a n equal to 1 plus 1 by n. What is limit a n? 1. तो this a n belongs to a alpha पिछले वाले एग्जांपल में. और फिर what is limit f of a n? Limit a n minus limit
greatest integer 1 plus 1 by n. This is what? 1 minus, this is what? Always 1. It is 0. तो ये 0 बिलोंग कर गया सी अल्फा में, नहीं कर गया? ठीक है. दूसरा मैं 1 माइनस ले लेता हूं तो भी ये कर जाएगी. ये दो तो आ गए ना उसके अंदर, बाकी नेक्स्ट करे तो नहीं आएंगे, बट ये दो तो पक्का आएंगे ना, कंफर्म. तो सी अल्फा में ये दो एलिमेंट 0 और 1 तो होंगे ना. हां, बाकी सीक्वेंस जो है उन पे टेस्ट करेंगे, या तो 1 आएगा या 0 है, कोई और तो आएगा भी नहीं. अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो नहीं कर रही है, लेकिन अगर एग्जिस्ट करेगी ना तो ये लिमिट या तो मेरी 1 होगी या 0 होगी. इन दिस केस इट इज ऑलवेज आइदर 1 और 0. आएगी तो 1 और 0, नहीं तो वो एक भी नहीं. बट सी अल्फा एम्प्टी नहीं है. मुझे पता है दो सीक्वेंस कम से कम ऐसी है ना मेरी, जिससे ये दो वैल्यू आ रहे हैं, इसलिए सी अल्फा में क्या है? 2 पॉइंट है 0 अल्फा. कंफर्म. सो एनीवे ये सेट मिलते रहेंगे आपको. लिखिए लिमिट्स. हमने दो डेफिनेशन डिस्कस की थी कल. पहली डेफिनेशन ये कहती है आपको, एक फंक्शन है, मैंने लिखा दिया, मैं थोड़ा सा पोस्टमार्टम करता हूं उसका, कि लेट एफ इज फ्रॉम एस टू आर. अच्छा, एक इसमें एक और जो थेटिकल प्रॉब्लम है बुक टू बुक कोई कैसे बोलता है, कोई कैसे बोलता है. कुछ लोग कहते हैं कि ये जो अल्फा, लेट एफ इज डिफाइंड इन अ नेबरहुड ऑफ अल्फा, ऐसे स्टार्ट ही वो करते हैं. लेट एफ इज डिफाइंड इन अ नेबरहुड ऑफ अल्फा एक्सेप्ट पॉसिबली एट अल्फा, है ना. लेट एफ इज डिफाइंड इन अ नेबरहुड ऑफ अल्फा एक्सेप्ट पॉसिबली एट अल्फा, एंड देन वी टॉक अबाउट लिमिट ऑफ एफ एट अल्फा. जैसे वो बोलते हैं ना कि f इज डिफाइंड इन अ नेबरहुड ऑफ अल्फा एक्सेप्ट पॉसिबली एट अल्फा, दैट मीन्स फॉर श्योर f इज डिफाइंड इन दिस नेबरहुड. इस पे तो पक्का डिफाइंड है फॉर सम डेल्टा, और इन दैट केस दिस बिकम्स मीनिंगफुल. जो लैंग्वेज ऐसे स्टार्ट करते हैं ना, लेट f इज डिफाइंड, ये तो एक ही चीज है ना. अगर फंक्शन इस पे डिफाइंड है, क्योंकि यहां पर x माइनस अल्फा 0 हटा दिया यहां पे, तो इसका मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू अल्फा, और बाकी में तो यही है हमारा. तो जो ये बोलता है कि f इज डिफाइंड इन अ नेबरहुड ऑफ अल्फा एक्सेप्ट पॉसिबली अल्फा, तो वो तो ये कह सकता है कि x डिफाइंड ऑन दिस सेट फॉर सम डेल्टा. ठीक है, उसको फिर इन s लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. बाटले ने स्टार्ट किया है कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू एस प्राइम. मेरे ख्याल से रूडिन ने भी स्टार्ट किया है लेट अल्फा बिलोंग्स टू एस प्राइम. तो बहुत लोग क्या करते हैं, नेबरहुड लेके ही चलते हैं. ज्यादा टाइट कंडीशन हो गई पूरा नेबरहुड पे डिफाइन करना. अगर वो नेबरहुड ना भी हो, नेबरहुड डिफाइन ना भी हो, अगर अल्फा एस का लिमिट पॉइंट है तो भी तो हम अल्फा के जितना चाहे उतना करीब पहुंच सकते हैं ना एस में रहते हुए, क्योंकि वो लिमिट पॉइंट है. तो उसके नेबरहुड में नो मैटर हाउ स्मॉल नेबरहुड वी चूज, देयर आर मेंबर ऑफ एस, तो उन मेंबर के थ्रू हम वहां तक पहुंच सकते हैं. दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट. सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिफाइन फंक्शन इन अ नेबरहुड ऑफ अल्फा. इट जस्ट शुड बी द लिमिट पॉइंट, अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट. नाउ एफ इज डिफाइंड ऑन एस टू आर एंड अल्फा बिलोंग्स टू एस प्राइम एंड एल इज सम रियल नंबर. ये वी से L इज, पहले अ लिमिट बोलते हैं और बाद में क्लेम करते थे द लिमिट. वी क्लेम इट इज यूनिक. वी से L इज अ लिमिट ऑफ f एट x इक्वल टू a अल्फा इफ, अब यहां से रिक्वायरमेंट, व्हेन x अप्रोचेस टू अल्फा fx अप्रोचेस टू L. यही डेफिनेशन है ना. x अप्रोचेस टू अल्फा fx approaches to L means the distance between fx and L can be made as small as we please. How? By choosing suitable neighborhood of alpha. If from that neighborhood x is chosen, the distance between fx and L will be less than epsilon. If for any epsilon positive there is delta positive such that the distance between fx and L is less than epsilon, whenever
mod x minus alpha is less than delta greater than 0 in S. The distance between fx and L can be made as small as you please, whatever option we choose. How? By finding suitable delta. अगर इसमें से x चूज करोगे तो ये डिस्टेंस हमेशा इससे कम रहेगी. ये तो कहना चाह रहा है वो. और फिर इसी को आप लिख देते थे लिमिट x टेंस टू अल्फा fx इक्वल टू L. When x tends to alpha, fx tends to L. How? The distance between fx and L is less than epsilon, and this epsilon is arbitrarily chosen. जितना चाहो उतना छोटा कर सकते हैं हम इसको. तो मतलब जितना चाहे उतना करीब पहुंच सकते नहीं पहुंच सकते हैं. This means fx approaches to L. How? When x get closer to alpha. ये कह रहा था वो. तो ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन थी. सेकेंड डेफिनेशन हमने ये यूज किया जनरल प्रिंसिपल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट. इसमें एल का यूज नहीं किया. अगर हमें यह प्रूफ करना है कि जब x अल्फा की तरफ जा रहा है तो fx L की तरफ जा रहा है, यही तो कहना है. कोई अननोन L है, उसकी तरफ जा रहा है, पता भी नहीं कौन सा L जा रहा है एक जगह, वो जगह कौन सी नहीं मालूम, बट ये कंफर्म है कि वो जा रहा है एक जगह. व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल अल्फा की तरफ जा रहा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल किसी एक जगह जा रहा है. ये कंफर्म करना था. ये तभी हो सकता है व्हेन x1 x2 आर वेरी क्लोज टू अल्फा. सो f of x1 एंड f of x2 मस्ट बी क्लोज टू L, दैट अननोन. अगर कोई है, दोनों से क्लोज होंगे नहीं होंगे, तो ये एक दूसरे के भी तो क्लोज होंगे. अगर दोनों L के क्लोज हैं तो एक दूसरे भी क्लोज होंगे. तो अगर हम ये भी प्रूव कर दें कि व्हेन x टेंड्स टू अल्फा fx व्हेन x1 x2 they all are close to alpha, fx1 fx2 fxn they are close to each other. तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह. वो जगह कौन सी होगी? वही जगह L मानी जाएगी. ये तो कह सकते हैं ना. तो वहां ऐसे प्रूफ किया गया जनरल प्रिंसिपल कि वी से लिमिट x टेंड्स टू अल्फा fx एग्जिस्ट. ये फाइनाइटली. इसका मतलब है कि f के पास डेस्टिनेशन है. अगर x अल्फा की तरफ जा रहा है, वो वाला एग्जांपल अभी जो पिछला एग्जांपल हमने किया फ्रैक्शनल पार्ट x, इसमें नोटिस किया ना कि a अल्फा सेट ऑफ पाथ फॉर x, b अल्फा सेट ऑफ पाथ फॉर fx और c अल्फा इज सेट ऑफ डेस्टिनेशंस फॉर f. ये तो है ना. तो a अल्फा में सबका डेस्टिनेशन क्या है? अल्फा. लेकिन c अल्फा में 2 पॉइंट है, 0 और 1. यानी f कभी कहां जा रहा है? 1 पे और कभी जा रहा है 0 पे. ये गड़बड़ है. अगर f के पास डेस्टिनेशन तो यही कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. इफ फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट mod f of x1 minus f of x2 is less than epsilon for all x1 x2 belongs to alpha minus delta alpha plus delta इंटरसेक्शन s माइनस अल्फा. इनमें से कोई भी 2 पॉइंट चूज करोगे, करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होगी उनकी भी डिस्टेंस क्या होगी? एप्सिलॉन से कम होगी. यही तो हो रहा है ना. जितनी चाहे उतना क्लोज पहुंचते जा रहे हैं हम लोग. एक ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों इक्वलेंट हैं. वहां से हम यहां जा सकते हैं, यहां से हम यहां. यहीं पर f ऑफ x1 माइनस f ऑफ, यहां पर L ऐड कर दो, L सबट्रैक्ट कर दो, तो f/2 कर दीजिए तो ये बन जाएगा. ठीक है. और ये ट्रू है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस यहां से भी निकाल सकते हो आप. ठीक है, कंफर्म. थर्ड जो है वो है सीक्वेंशियल, वो भी लिखिए. 2 डेफिनेशन हो गई हमारी. थर्ड, Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. let alpha belong to S prime and f is from S to R. We say limit. One of the most important easy method to discuss limit is this third. Highly recommended. इसको इस्तेमाल कीजिए, भरपूर यूज कीजिए, बहुत अच्छी डेफिनेशन बनती है ये. x टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स एग्जिस्ट. ये कुछ वैसे ही कन्वर्जेंट एंड देन लिमिट. पहले हम कन्वर्जेंट प्रूफ करते थे और फिर लिमिट निकालते थे, है ना. दिस एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ
लिमिट ए एन इक्वल टू अल्फा और that is sequence AN converges to alpha implies sequence FAN is convergent. बस अगर कोई सीक्वेंस अल्फा पे कन्वर्ज कर रही है तो उसकी फंक्शनल वैल्यू सीक्वेंस कहां जाएगी, वो कन्वर्ज करेगी, कहां जाएगी पता नहीं, कन्वर्ज करेगी बस इतने भर से। वो जो सी अल्फा सेट आप ढूंढ रहे थे ना, कहां गए ये, अब तो ये होमवर्क कर चुके हैं सीक्वेंशियल एनालिसिस ए एन और एफ एन वाला। ए अल्फा क्या था, सेट ऑफ सीक्वेंसेस विच आर कन्वर्जिंग टू अल्फा, दैट मीन्स एवरी मेंबर ऑफ ए अल्फा इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस और सबकी लिमिट क्या है अल्फा। ये कह रहा है कि हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है अगर बी अल्फा का भी हर मेंबर कन्वर्जेंट हो जाए, बी अल्फा का भी हर मेंबर कन्वर्जेंट हो जाए, इतने भर से मैं कह दूंगा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और फिर ये अपने आप प्रूफ कर देगा कि सारी सीक्वेंस एक ही जगह जाएंगी, आपको ये कहने की जरूरत भी नहीं है कि कन्वर्जिंग टू सेम लिमिट, ये अपने आप इंप्लाई करेगा, देखो इंप्लाई करेगा भी। ये समझ में आ रहा है कि हम कहना चाहते हैं लिमिट इस करेगी नहीं कर रही है। तो पहला मेथड वो था हमारा एल कॉची मेथड, सेकंड जनरल प्रिंसिपल, थर्ड इसको हाइंस मेथड बोलते हैं, वो एक्चुअली कंटिन्यू में आता है बट हाइंस थ्योरम जो आती है। यहां वो कहना चाह रहा है कि जब जब ए एन अल्फा पे कन्वर्ज करेगा एफ ए एन इज कन्वर्जेंट, दैट इज फॉर ऑल ए एन बिलोंग्स टू ए अल्फा एफ ए एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, इतने भर से हम कह सकते हैं कि मेरा ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्या है, में इतने सारे लोग कंफ्यूज थे क्या, आज 9 बजे वाला मामला था, हम थोड़ा सा सुधर गए, हम थोड़ा सा 15 मिनट के आसपास समझ आते हैं। ठीक है, बट जो बात जो मेरे से लेट आता है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेरा थोड़ा गिल्ट कम हो जाता है। ठीक है हाँ, मैं भी ये मान के चल रहा था, पर मैंने अभी मैसेज देखा, अरे बाप रे, हम तो आज खुशी खुशी घर से निकले कि आज पहले पहुंचेंगे। ये देखो, ये अभी का नहीं है, अभी का है। अच्छा, बाहर भी 9 बजे लिखा होगा। मेरे मोबाइल में भी आया है, उसमें 9 बजे का है। ठीक है, बट हो सकता है, कोई नहीं, हाँ देख के आओ, हैंस प्रूव्ड। फोटो खींच लाते यार। ठीक है, 9:30 लिखा है, 9 लिखा है, वो 2 जगह लिखा होगा ना, यही तो है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, 2 वैल्यू आ रही है। 9:30 लिखा है, अगर 9 लिखा है मैंने, अच्छा हम जीत गए। यार हम लोग बच्चों से जीतेंगे तो हमेशा हार जाएंगे। ठीक है, देखो कल एक क्वेश्चन पे एक पुराना बच्चा 3-4 साल 4 साल कई जगह पढ़ाता है, वो आया सर, वो एक आंसर गलत था उसमें एनबीएचएम में, तो मैंने कहा यार चांस तो नहीं है। मैंने कौन सा क्वेश्चन था, एक लीनियर क्वेश्चन था, मैंने चांस तो नहीं, बताओ कौन सा क्वेश्चन था। उसने बोला सर ऐसा था, मुझे एग्जांपल मिल गया, प्रूफ तो नहीं कर पा रहा, एग्जांपल मिल गया मेरे को, एंड ही वाज राइट। तो मैंने कि नहीं बॉस, ये तो नहीं, ये तो गलत है तुम्हारा। कहता नहीं सर मुझे एग्जांपल मिल गया, अभी याद नहीं आ रहा है, एग्जांपल मिल गया मेरे को, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। काउंटर एग्जांपल के बाद जनरली बचता नहीं है, काउंटर एग्जांपल सुटेबल है, दैट इंपॉर्टेंट, या तो प्रूफ कर दो या काउंटर एग्जांपल दे दो। कहता नहीं सर मैं लेके आऊंगा। तो मैंने उसको बोल तो दिया कि नहीं यार, बट मन नहीं मानता तो प्रूफ नहीं, या तो प्रूफ करूंगा या फिर मैं काउंटर एग्जांपल ढूंढूंगा। तो आई स्टार्टेड ट्राइंग अगेन। जैसे मैंने दोबारा प्रूफ करने की कोशिश की, मैंने ओह दैट इज वाज द मिस्टेक कि मैंने 1 + x + x² + x⁴n, ये जो पॉलिनोमियल होता है साइक्लोटॉमी जैसा, अगर n p-1 नहीं है तो गारंटी थोड़ी है कि इरेड्यूसिबल होगा ये। तो आई टुक दैट इरेड्यूसिबिलिटी एंड देन क्लेम। मैंने कहा नहीं, फिर काउंटर एग्जांपल मैंने प्रोड्यूस कर दिया कि ये, उसको मैसेज भी किया मैंने कि तू सही था यहाँ पर।
तो बड़ा हैप्पीली बोला सर हम वही तो मैं कह रहा था यार। तो वो हैप्पीनेस बड़ी अच्छी लगती है कि हाँ कि इफ यू प्रूव मी रॉन्ग देन यू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैप्पी। एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग आता है ना, एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल आता है। एनीवे, तो यहां जो मैं कहना चाह रहा था कि तीसरा मेथड मेरे पास आ रहा है वो ये कि अगर कहना है आपको सीक्वेंस लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स एग्जिस्ट, क्या है बात की बात है, पैरेलल टू सीक्वेंसेस हम एक तरफ प्रूफ करते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड देन वी फाइंड लिमिट। बिल्कुल वही है ना, यहां भी हम पहले ये प्रूफ करें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या, फिर निकालेंगे। पहले प्रूफ तो करें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो ये मेथड काम आ सकता है कि इफ you show कि whatever sequence you take an which converges to alpha, just prove sequence fn is convergent. Not q implies not p. यानी एक भी सीक्वेंस ऐसी मिल जाए कि an कन्वर्ज कर रही है अल्फा पे बट fn कन्वर्ज नहीं कर रही है, इसका मतलब दिस लिमिट विल फेल टू एग्जिस्ट। ये डेफिनेशन है, जरा इससे देखना। ये जो सी अल्फा आप बना रहे थे, आपने जिक्र किया था ए अल्फा बी अल्फा, आपने ये क्वेश्चन आया था कि बी अल्फा में कुछ कन्वर्ज कर भी सकती, नहीं भी कर सकती। हमारा इंटरेस्ट किसमें था, जो कन्वर्ज कर रही है उन सब की लिमिट सी अल्फा में। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना तो ये कंफर्म है इसके सारे के सारे मेंबर कैसे होंगे, कन्वर्जेंट होंगे ही नहीं होंगे, पक्का। अब जरा देखना, यहां से मैंने दो मेंबर लिए, एक ए एन लिया एंड एक बी एन लिया, दोनों कहां जा रहे हैं अल्फा पे, और दोनों कहां है ए एन बी एन किसको बिलोंग कर रहे हैं, एस को। कंफर्म, एक डिफाइन कर रहा हूं, और एफ ए एन भी कन्वर्ज कर रही है एंड एफ बी एन आर कन्वर्जेंट। ठीक है, लेट लिमिट एफ ए एन इक्वल टू L1 एंड लिमिट एफ बी एन इक्वल टू L2। हमने ये तो माना है कन्वर्ज कर रही है, ये तो पता लिमिट सेम है, बट इसका हर मेंबर कैसा है, कन्वर्जेंट। मैं अभी ये लिखा दूंगा, इसको मत छापो, ठीक है। ये L1 है। नाउ डिफाइन, देखना एक सीक्वेंस डिफाइन कर रहा हूं, XN DN, सुंदर, DN कैसे, AN when N is even, BN when N is odd। बना सकते हैं सीक्वेंस, मुझे ये दी AN, मुझे दो सीक्वेंस BN दी, इन दोनों की हेल्प से ये बना सकता हूं। मैंने एग्जांपल अपनी लिस्ट में है कुछ 31 32 जो भी, जहां पर बताया गया था कोई दो सीक्वेंस चूज करो और इसके इवन से इसके और से नई सीक्वेंस बन जाती है। तो मैंने इन दोनों सीक्वेंस, एक सीक्वेंस बना ली DN, इवन पे इसका टर्म रखेंगे, ऑड पे इसका टर्म रखेंगे, बट ये दोनों क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट इसकी होगी। व्हाट इज लिमिट DN, DN कहां जा रही है, ये भी अल्फा पे जा रही है, ये भी अल्फा पे, तो DN कहां जा रही है, अल्फा पे। और f ऑफ DN, इसके पास दो सब सीक्वेंस हो गई, f ऑफ AN एंड f ऑफ BN, n इज इवन और n इज ऑड। f DN कन्वर्ज करेगी क्या, इसकी ये सब सीक्वेंस कहां जा रही है, L1 पे, ये कहां जा रही है, L2 पे। अच्छा इंटरेस्टिंग ये है कि DN किसको बिलोंग कर गया, A अल्फा को, तो f DN क्या करना चाहिए था, कन्वर्ज करना चाहिए था, जबकि यहां क्या हुआ, कन्वर्ज नहीं कर रही। यानी ये इसमें इनबिल्ट हो गया, मैं वही लिखाऊंगा अभी आपको, कि अगर इतना भर कह दो ना कि AN बिलोंग्स टू A अल्फा इंप्लाइज F AN इज कन्वर्जेंट, इतने भर से ये भी प्रूफ हो जाएगा कि B अल्फा की सारी सीक्वेंस एक ही जगह कन्वर्ज कर रही है। कि अगर कोई दो सीक्वेंस F AN और F BN अलग अलग कन्वर्ज कर गई तो A अल्फा में एक सीक्वेंस ऐसी जरूर मिल जाएगी जिससे करस्पॉन्डिंग F DN कन्वर्ज ही नहीं करेगा। दो लिमिट आ गई, नहीं दो लिमिट पॉइंट आ गए, तो यहां से ये अपने आप इंप्लाई हो जाएगा कि दे ऑल द मेंबर्स ऑफ B अल्फा आर कन्वर्जिंग टू सेम पॉइंट, सेम लिमिट, एंड दिस लिमिट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ फंक्शन, और ये दिस एग्जिस्ट एंड इक्वल टू दैट लिमिट। कंफर्म, इसको लिख लीजिए, ठीक है। एंड देन रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट क्या है, इसके बाद इस डेफिनेशन के बाद आ जाएगा कि इफ फॉर ऑल AN बिलोंग्स टू A अल्फा, F BN F AN is convergent implies limit F AN equal to limit F BN for all AN BN belongs to A अल्फा।
हाँ, हर जगह जहां भी मैं लिख रहा हूं एग्जिस्ट फाइनाइटली। इनफाइनाइटली के लिए हम अलग से डिफाइन कर पाएंगे, सेम हो जाए इसकी जैसे अलग बात है, बट डिफाइन अलग ही करेंगे। लिमिट एफ एन इक्वल टू लिमिट एफ मीन्स इफ फॉर ऑल ए एन ए अल्फा एफ एन इज कन्वर्जेंट, दिस इंप्लाइज देन दिस हैज टू बी सेम। ठीक है, कंफर्म। और ये ऐसा क्यों हो रहा, जो अभी बताया कि इफ नॉट, सिंपल ना, कि इफ देयर एग्जिस्ट एक्स एन एंड वाई एन बिलोंग्स टू ए अल्फा सच दैट लिमिट एफ एक्स एन इज नॉट इक्वल टू लिमिट एफ वाई एन, देन वी कैन डिफाइन Zn as xn when n is even, yn when n is odd. So Zn, this tends to alpha, implies Zn this belongs to A alpha, but Fzn is not convergent. ये आ गया मेरा कॉन्ट्राडिक्शन। अगर ये ट्रू है कि जब जब ये इसको बिलोंग करेगा, ये कन्वर्ट करेगा, तो मैं कह रहा हूं कोई दो सीक्वेंस ले लीजिए, सब दोनों कहां जाएंगी, एक ही जगह, मतलब सारी सीक्वेंस कहां जाएंगी, फिर एक ही जगह जाएंगी। एनी टू सीक्वेंस इफ यू टेक, दे ऑल आर कमिंग टू सेम पॉइंट। और क्यों कह पा रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है कि इफ देयर एग्जिस्ट वन पेयर ऑफ सीक्वेंस इन ए अल्फा फॉर विच दीज टू लिमिट्स आर डिफरेंट, आई कैन फाइंड और डिफाइन दिस सीक्वेंस Zn, ये इसकी सब सीक्वेंस, ये इसकी सब सीक्वेंस, और दोनों जा रही है अल्फा पे, तो Dn का Zn कहां जाएगा, अल्फा पे। तो Fzn हमारे पास, इसके पास दो सब सीक्वेंस Fxn और Fyn, और यहां से वो अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये कन्वर्ज नहीं कर रहा है। कंफर्म। एक तरीका और मिल गया आपको शो करने का, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों चीजें ध्यान रखिए, कैसे शो करते लिमिट एग्जिस्ट और कैसे शो करते लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आपको शो करना हो कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, काफी यूजफुल हो जाता है ये भी, काम खत्म कि नहीं एग्जिस्ट कर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ना, तो ये तरीका हो सकता है, ट्राई टू फाइंड वन सीक्वेंस ए एन टेंडिंग टू अल्फा एंड एफ एन इज नॉट कन्वर्जेंट। एक सीक्वेंस ऐसी मिल जाए ए एन कि एफ एन कन्वर्जेंट नहीं है, और ए एन कहां जा रहा है, अल्फा पे। ए एन हमेशा कन्वर्जेंट होगा, और कहां जाएगा, जिस पॉइंट अल्फा पे टेस्ट कर रहे हैं वहीं। एक भी सीक्वेंस ऐसी मिल जाए ए एन विच टेंड्स टू अल्फा एंड एफ एन इज नॉट कन्वर्जेंट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बाय डेफिनेशन। और इसका जो रिजल्ट आया कि अगर कोई दो सीक्वेंस लेंगे, दोनों से एक ही जगह जाना चाहिए। अगर एक पेयर ऐसा मिल जाए कि एक से कहीं और जा रहा है एफ एन और दूसरे से कहीं और, तो अभी लिमिट फेल कर जाएगी। ये बड़ा यूजफुल मेथड है ये। टू क्लेम लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ट्राई टू फाइंड आइदर वन सीक्वेंस फॉर कन्वर्ज टू अल्फा फॉर विच एफ एन इज नॉट कन्वर्जेंट, डन, लिमिट फेल्स टू एग्जिस्ट। दूसरा, ट्राई टू फाइंड पेयर ऑफ सीक्वेंस बोथ आर कन्वर्जिंग टू अल्फा बट एफ ए एन एंड एफ बी एन आर डिफरेंट, लिमिट एफ ए एन एंड एफ बी एन आर डिफरेंट। तो वहां से फेल हो जाएगा, क्योंकि यहां से यही तो कंडीशन आ गया ना पर कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। जबकि क्या होती है लिमिट, कि जब जब ये जाएगा तब इसको कन्वर्जेंट होना चाहिए। अगर दो डिफरेंट वाली मिल रही है तब भी एक मिल रही है जो कन्वर्ज नहीं कर रही है। ठीक है, दिस इज आवर थर्ड मेथड। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए।